Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. As you all know that from the last few classes we have been studying the chapter properties of parallel lines. So today once again we will start on with the same chapter and look few more questions on that topic. You all are requested to watch the complete video so that you can understand the chapter very well and you would be able to solve all the questions on your own. And as you all are aware that your upcoming examination is scheduled in the next month, so study very hard so that you can get good marks in your examination. Moreover, do not forget to send me your homework regularly on my number, that is 8227932481. So without wasting any more time, let's start our today's video, and this would be probably our last video for properties of parallel lines, and then after we will start on with next chapter. Okay, so let's start properties of parallel lines. Parallel lines. The first question which we are taking today is, in the adjoining figure it is given that AB parallel to CD, angle ABO is equal to 50 degree and angle CDO is equal to 40 degree. Find angle BOD. This is your given figure. The figure might not be to scale, I'm sorry for that, but you will understand very clearly. A, B, C, D and O. This is your question and this is the given figure. AB parallel to CD. This line AB is parallel to CD. It is given. Now what else is given is angle ABO is equal to 50 degree. ABO, this is given 50 degree, and CDO, this is given as 40 degree. You have to find angle BOD. You have to find this angle. Let it mark as X degree. So you have to find the value of X. How are you going to find it? So whenever we are given such type of question, we cannot find the value of X directly. First of all, we will have to do the construction. So what is the construction we are going to do here is we are going to draw a parallel line to both of these lines which are going to pass from O. तो इन दोनों लाइन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट O से पास करता हो. ओके, नाउ एज यू ऑल्सो कैन सी दैट ये x को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, काट दिया है ना. दे माइट नॉट बी इक्वल नहीं भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बट इट इज डिवाइडिंग x इनटू टू पार्ट्स. ओके, नेम इट एज E एंड F. इसका नाम क्या दे देते हैं, E और F. Now how we are going to find? Now it is very clearly, you have read all the properties of parallel lines. So what we can say that if AB is parallel to CD and we have drawn by construction EF parallel to AB and CD. एक लाइन हमने ड्रॉ किया है EF जो कि इन दोनों लाइन के पैरेलल है. तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं. तो गिवन क्या क्या है, AB parallel to CD. It is given angle ABO is equal to 50 degree and angle CDO is equal to 40 degree. It is given. इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि EF एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि इन दोनों लाइन के क्या है, पैरेलल. तो लिख देंगे EF is drawn पैसिव वॉइस में पैरेलल टू बोथ AB एंड CD. हमने एक लाइन ड्रॉ किया है EF जो कि पैरेलल है किसके, AB के भी पैरेलल है और
CD के भी पैरेलल है। नाउ व्हाट वी कैन से, वी कैन स्टार्ट विद द प्रूफ और वी कैन स्टार्ट विद द फाइंडिंग आउट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है हम लोगों को, एंगल BOT विच इज इक्वल टू x डिग्री, जिसको हमने x माना है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हैं कि AB और EF आपस में क्या है, पैरेलल, तो इन दोनों को क्या ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ध्यान से देखिए, AB और EF पैरेलल, तो इन दोनों को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो लिख सकते हैं AB पैरेलल टू EF एंड BO इज ट्रांसवर्सल। BO क्या है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि दोनों लाइन को कट कर रहा है। जब AO और EF आपस में पैरेलल है और BO ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ABO किसके इक्वल हो जाएगा, BOF इज इक्वल टू एंगल BOF। क्यों होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद होगा आपको, जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता था तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल ABO कितना दिया हुआ है, एंगल ABO कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। ABO कितना है, 50 डिग्री, तो BOF भी कितना हो जाएगा, तो एंगल BOF इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसको हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में भी क्या हो सकता है, अगेन फिर से लिख सकते हैं हम लोग वही चीज। इस बार CD के पैरेलल कौन है, EF, तो CD पैरेलल टू EF एंड क्या ट्रांसवर्सल है, DO, एंड DO इज ट्रांसवर्सल। जब CD और EF आपस में पैरेलल है और DO ट्रांसवर्सल, तो क्या लिख सकते हैं, CDO इज इक्वल टू DOF। क्या लिख सकते हैं, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल DOF। इसके लिए रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो CDO का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, तो DOF भी कितना हो जाएगा, एंगल DOF इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल DOF भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। सॉरी बच्चा, CDO है ना, और CDO का कितना है, 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इसको क्या कर देते हैं, सेकंड। अब हमको फाइंड क्या करना था, BOD। ध्यान से देखिए, एंगल BOD किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हमको BOD फाइंड आउट करना है तो क्या हम BOF और DOF, BOF यहां से यहां तक और DOF यहां से लेकर यहां तक, अगर दोनों को ऐड कर दे तो पूरा निकल जाएगा BOD। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOF प्लस एंगल DOF। और BOF का मेजरमेंट कितना है, फर्स्ट इक्वेशन देखिए 50 डिग्री, प्लस DOF का मेजरमेंट कितना है, सेकंड इक्वेशन देखिए 40 डिग्री। तो एंगल BOD 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। BOD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हेंस एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। हमने उसको x माना था और x इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move on to the next question. The next question is, in the given figure, AB parallel to CD and angle ABE is equal to 120 degree and angle ECD is equal to 100 degree. Find angle BEC is equal to x degree. Okay, this is the question given. Now the figure is like this. A, B, C, D. Okay, and we have a parallel line drawn from here to both of the given parallel lines, FG. This is E
this is x degree, this is 120 degree, and this is 100 degree. So this is the given question. In the given question you have to find the value of x, that is angle BEC. Okay, what else is given in question? That AB is parallel to CD, and at the same time AB is parallel to FG and CD is also parallel to FG, because this line is drawn parallel to both of the given lines. Okay, so you have to find out the value of x. How we will find out? Again, a very easy question. You just have to apply the property of parallel lines by taking one line at a time. We can see that AB is parallel to FG. AB is parallel to FG. तो इन दोनों को कौन सा लाइन कट कर रहा है? BE इन दोनों लाइन को कट करेगा, एंड BE is ट्रांसवर्सल. BE क्या है? ट्रांसवर्सल. जब AB और FG पैरेलल लाइन है और इन दोनों को BE कट कर रहा है जो कि एक ट्रांसवर्सल है, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगा? 120 डिग्री ये है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो लिख सकते हैं एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BEG. एंगल BEG, तो एंगल BEG कितना आ जाएगा? 120 डिग्री. इसको क्या कर देते हैं? फर्स्ट, क्योंकि ABE कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री, तो BEG भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. सिमिलरली उस लाइन के लिए भी कर सकते हैं ना. सिमिलरली क्या हो जाएगा? CD पैरेलल टू FG एंड क्या ट्रांसवर्सल है? CE, एंड CE इज ट्रांसवर्सल. Therefore, angles DCE is equal to CEF is equal to angle CEF. रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पे रीजन लिख दीजिए आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो DCE कितना है? 100 डिग्री, तो CEF भी कितना हो जाएगा? एंगल CEF इज इक्वल टू 100 डिग्री. CEF यहां से लेकर यहां तक 100 डिग्री. इसको हम लोग कर देते हैं सेकंड. अब आप ध्यान से देखिए बच्चा, जब ये 120 तो यहां से लेकर यहां तक 120, ये 100 तो यहां से लेकर यहां तक 100, तो बीच में तो x है ना. जब यहां से लेकर यहां तक 120 आ गया और बीच में x है, तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 120 डिग्री माइनस x को माइनस कर देंगे. सिमिलरली यहां से यहां तक 100 है, तो सिर्फ यहां से यहां तक कितना होगा? तो 100 माइनस x. क्यों? क्योंकि बीच में x था, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसी चीज को लिख देंगे एंगल सिंस एंगल BEC इज इक्वल टू x डिग्री दिया हुआ है, तो देयरफॉर BEG कितना हो जाएगा? एंगल BEG कितना हो जाएगा? एंगल BEG इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस x, एंड एंगल CEF कितना हो जाएगा? CEF इज इक्वल टू 100 माइनस x. क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल्स बनेंगे, सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट. तो क्या लिख सकते हैं? BEF since FG is a straight line, therefore FG एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए BEF एंगल BEF प्लस एंगल BEC प्लस एंगल BEC प्लस एंगल CEG प्लस एंगल CEG, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. BEF कितना है? BEF का मेजरमेंट कितना है बच्चा? CEF नहीं, BEF.
ये CEF नहीं, ये क्या होगा, BEF। ओके, क्योंकि CEF तो 100 पूरा हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, सिर्फ हमको BEF निकालना है। तो BEF का मेजरमेंट 100 माइनस एक्स डिग्री प्लस BEC कितना है, x। फिर से देख लीजिए एक बार, BEF कितना हो गया 100 माइनस एक्स, BEC कितना दिया हुआ है x डिग्री, और CEG कितना हो जाएगा, तो CEG इक्वल टू 120 डिग्री माइनस एक्स, 120 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी CEG कर लीजिएगा। ओके, B और C में चेंजेस हो गया है, तो ये हो जाएगा, ऐड कर लीजिए सबको, 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220 माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, तो हो गया 220 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 220 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 220, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 में से 220 माइनस 40 और माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री। हमको यही फाइंड आउट करना था, और एक्स मेरा क्या था, एंगल BEC। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस एंगल BEC इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब ये 120 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, लेकिन क्योंकि ये बीच में x है तो इस x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको इस एंगल के लिए। तो 120 माइनस एक्स, ये 100, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100, अगेन बीच में x है, तो इसका निकालने के लिए x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 100 माइनस एक्स, अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। और आप सबको तो वैल्यू निकालने आता ही है x का, सो यू ऑल कैन फाइंड आउट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is a very important question and a very easy question as well. The question is, in the given figure, AB parallel to CD and AD parallel to BC and AC is diagonal. AC is diagonal. If angle BAC is equal to 35 degree, angle CAD is equal to 40 degree, angle ACB is equal to x degree, and angle ACD is equal to y degree. Find the values of x and y. A, B, C, D. This is diagonal. This is 35 degree and this is 40 degree. This is x and this is y. You have to find the value of x and y. This is your question. This is the given figure in which AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Okay? AD is parallel to BC. हम लोग ये मार्क इसलिए लगाते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि कौन सा लाइन किसके पैरेलल है। तो ये दो इस दो के पैरेलल और ये सिंगल मार्क इस सिंगल मार्क के पैरेलल। ओके, इक्वल रहता तो बस एक लाइन लगाते डॉट, उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये गिवन फिगर में AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और AD किसके पैरेलल है, तो BC के पैरेलल है, और AC एक डायगोनल है। डायगोनल मालूम है क्या होता है, जो अपोजिट टू वर्टिसेस को ज्वाइन करता है उसको डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल है। एंगल BAC का मेजरमेंट 35 डिग्री और DAC का मेजरमेंट 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है x और y। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप बताइए, AB और CD आपस में पैरेलल है, तो AB पैरेलल टू CD, इन दोनों को कौन कट कर रहा है? आप बोलिएगा BC भी कट कर रहा है, तो AC भी तो कट कर सकता है। ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और इसको ये दोनों कट कर रहे हैं, तो ये कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
हो जाएंगे। तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, तो y किसके इक्वल हो जाएगा 35 डिग्री, y इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं बच्चा, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, फिर से ए सी ही काट रहा है दोनों को, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ए डी और बी सी पैरेलल, इन दोनों को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ऐसे फिगर है इस बार, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो ये 35, तो ये भी कितना 35 डिग्री, और ये 40, तो ये भी कितना 40। तो ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हेंस x is equal to 40 डिग्री एंड y is equal to 35 डिग्री। और x क्या था, एंगल ACB, तो एंगल ACB is equal to 40 डिग्री एंड y क्या था, तो ACD, एंगल ACD is equal to 35 डिग्री। आंसर कितना आसान है, कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। I hope it is clear to everyone. Okay, let's move on to next question. That is a very interesting question, जो कि एक बहुत ही interesting question है। The question is, in each of the given figures, फिगर टोटल 3 है, मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा, एक आपको खुद से सॉल्व करना होगा। ओके, in each of the given figure, L parallel to M. It is given that L is parallel to M. Okay, leave it. In the given figure, L and M सिर्फ दिया हुआ है लाइन, L and M are cut by a transversal T. L और M फाइंड करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिए। In each of the given figure, L and M are cut by a transversal T. Find whether L parallel to M। हम इसको पहले लिख रहे थे लेकिन बाद में लिख दिया। ओके, क्या दिया हुआ है कि L और M आपके पास 2 लाइन गिवन होंगे और उनको एक ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है। आपको फाइंड करना है क्या L और M आपस में पैरेलल हैं। तो कोई लाइन तभी पैरेलल होगा जब वो सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। आपको बता चुके हैं अगर 2 लाइन पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो क्या क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जिसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको फाइंड करना है। जो फर्स्ट फिगर है, एक लाइन L और एक लाइन M, इन दोनों के ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है। ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और ये एंगल है 130 डिग्री। आपको बस बताना है कि L पैरेलल है M के कि नहीं, यस या नो। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है इस गिवन फिगर में कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो गिवन मेजरमेंट है ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है। डेफिनेटली अगर ये 40 डिग्री है बच्चा, तो इसके अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अच्छा अगर हम आपसे एक बात और पूछें, अगर ये 40 डिग्री था तो ये कितना होगा, ये निकाल सकते हैं आप। इसको क्या मान लेते हैं, x। तो x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर आपने पढ़ा है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना 140 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 140, यहाँ पर 140 डिग्री। अगर ये 140 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए था 140 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, लाइन के बाहर ये और ये भी लाइन के बाहर, लेकिन क्रॉस वाला रूल याद है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये 140, तो ये भी कितना होना चाहिए था 140 डिग्री। तो क्या ये 140 डिग्री है, तो लिख देंगे नो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉट
equal, hence L is not parallel to M। अगर हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालते तब भी निकाल सकते थे। ये 40 डिग्री है, तब कैसे निकालते, यहां पर कैसे पहुंचते, ये बताइए। बहुत आसानी से पहुंच सकते थे ना। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि ट्रांसवर्सल भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री लीनियर पेयर। लेकिन 130 और 40 को जोड़ेंगे तो सिर्फ 170 डिग्री आएगा, 180 डिग्री नहीं आएगा। इसीलिए L इज नॉट पैरेलल टू M। किसी भी कंडीशन से आप सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Let's move on to one more question of the today's session. The same question, you have to find whether L is parallel to M or not. The question is L, M, it is cut by a transversal. This is 35 degree and this is 145 degree. Find. You have to find whether L parallel M or not। चलिए आप बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, आप खुद से सोच क्वेश्चन देखिए और डिसाइड करिए। ये 35 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। रीजन क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइन के सेम साइड में एंगल्स हैं। इन दोनों को कैसे एंगल्स बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 35 डिग्री और प्लस 145 डिग्री, दोनों को ऐड करने पर 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 14 + 3 17, 17 + 1 180 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, यस द sum of co-interior angles is 180 degree. Hence, L is parallel to M। तो L किसके पैरेलल होगा, M के पैरेलल। समझ में आ गई बात। आपको बस प्रॉपर्टी लगाना है कि कौन सा प्रॉपर्टी किसमें फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देख रहे थे ये 35 तो ये भी 35, सिंपल 35 और 145 को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तब ये पैरेलल होगा। अगर नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो 35 + 145 कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं, L इज पैरेलल टू M। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू वॉच मोर such contents. So that was all for the today's video. Thank you all. Have a good day.